Okay, good morning to all of you. Once again, all would be safe. Stay home, stay safe. Avoid the COVID pandemic. Yesterday, we have discussed about production possibility curve. I am just revising. It is given by economist whatever. He said that to produce one goods with the best technology and best resources, to produce one good with the help of best technology and best resources, we must sacrifice the other goods. एक वस्तु का उत्पादन करना है तो हमें दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा. That day we have discussed with the help of graph. I am just giving you the example. See, this is the graph. On OX axis we will take production of car, and OY axis we will take the production of computer. I have already told you that production possibility curve is always origin to concave. Always origin to concave. Means it goes concave to the origin. So these will be the curve which shows that it is a concave. A will be the point on production possibility curve जहां पर हम 5 यूनिट कंप्यूटर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? बिकॉज हमारे पास जो लेबर और जो कैपिटल, जो भी रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज वी यूज वी फुल्ली यूटिलाइज टू प्रोड्यूस कंप्यूटर एंड नो कार. A point. Unit 4, if we will produce 4 unit, it means we will produce 2 unit of car and 4 unit of computer. Same 3 unit of computer, so here 3 unit of car, completely 4 unit of car, so A, B, C and D. D point we are producing completely 4 unit of car and 0 unit of computer. It means to replace, right? To that is called desire. So to sacrifice the 4 unit of computer, in place of that we produce 4 unit of car. जो हमारे पास संसाधन थे, जो रिसोर्सेज थे, वो हमने पूरे के पूरे किस में लगा दिए? कार के प्रोडक्शन में. तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं हुआ. उल्टा जब हमने पूर्ण रूप से कंप्यूटर उत्पादित करे तो कार नहीं उत्पादित हुई. नाउ दिस इज योर चॉइस, इकोनॉमिक चॉइस, which point is suitable, which point is suitable on PPC. now question comes कि अगर हम इसके नीचे जाते हैं, obviously we can go, but we are not utilizing the fully resources. If we will go to the below concave of PPC, तो हम resources को full utilize नहीं कर रहे, हमारा कहीं न कहीं resources व्यर्थ जा रहे हैं. If we will go to the upwards, then it is not possible because resources is not there. So this is a game between availability of resources and allocation of resources. Again I am telling you, availability of resources, हमारे पास resources कितने available है, and utility of resources, हम इनको कैसे उपयोग कर रहे हैं. फुल्ली यूटिलाइज करने के बाद हम इनमें से कोई एक पॉइंट पीपीसी के ऊपर ले सकते हैं जो ये शो करेगा कि मेरी इकोनॉमी, मेरी कंट्री के अनुसार ये पॉइंट सबसे अच्छा है. यू कैन चूज एनी वन पॉइंट. अब क्वेश्चन कम्स इकोनॉमी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. In a sector of economics, 3 types of economies are there. First, capitalist economy.
First is capitalist and Hindi it is called पूंजीवाद. Word itself has a meaning. पूंजीवाद मतलब जहाँ पर धनिक लोगों का, पैसे वालों का बोलबाला है, जिनके पास पैसा है वो लोग कुछ चीजें डिसाइड करते हैं. सेकंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी. इट मींस दैट ऑल द रिसोर्सेज वुड बी अंडर द गवर्नमेंट. ये वो स्थिति है जिसमें गवर्नमेंट के पास सारे रिसोर्सेज रहते हैं और गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को अपने अनुसार उपयोग में लाती है. यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट, मिक्स इकोनॉमी अलग अलग पॉइंट चूज करेंगे. कैसे करेंगे वो भी हमको मालूम पड़ जाएगा. थर्ड इकोनॉमी इज मिक्स इकोनॉमी. द इकोनॉमी इन विच few resources, important resources would be under the government. कुछ important resources जो होते हैं वो सरकार के पास होते हैं and others resources are also with privatization. वही गवर्नमेंट यूज करती है रिसोर्सेज को, वही गवर्नमेंट प्राइवेट यूज करता है और दोनों अपने अपने उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं. दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं. क्या होता है ये? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री होती है, सरकार का हाथ इंटरफेयर कम होता है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करते हैं, लाभ को पाने की कोशिश करते हैं और इस लाभ को पाने के लिए कहीं ना कहीं वो कॉस्ट कटिंग करेंगे. प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब हम रिसोर्सेस ज़्यादा यूज कर रहे हैं या फुली यूटिलाइज हो रहा है. 10 किलो शुगर केन से 18 किलो शुगर बन रही है. मैं इसी टेक्नोलॉजी लेके आया कि 20 किलो शुगर बन रही है. तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉस्ट कटिंग में मेरे वर्कर्स को, राइट, या मैं मेरे काम करने वालों को पैसा कम दे रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, या प्राइस बढ़ा रहा हूँ तो प्रॉफिट बढ़ रहा है. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन मोटो होता है वो होता है प्रॉफिट. एग्जाम्पल, USA, Germany, France, they are capitalist economy. Second, socialist economy, vice versa. Just उल्टा, capitalist, socialist समाजवाद. वर्ड शब्द में अपने आप में एक मीनिंग है, समाजवाद, जहां पर कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, जहां कोई छोटा कोई बड़ा, all are equal. So government produces the goods according to the choice of the poor consumer or according to the choice of welfare. सरकार जन कल्याण की नीति अपनाती है. ऐसे प्रोडक्शन, ऐसी प्रोसेस जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला. यहाँ प्रॉफिट एम नहीं, उद्देश्य नहीं, यहाँ उद्देश्य है वेलफेयर का. सो वेलफेयर गवर्नमेंट सोचती है, गवर्नमेंट थिंक्स दैट, गवर्नमेंट emphasize, गवर्नमेंट प्रेशराइज कि हाउ वी कैन गेट द थिंग्स और द कमोडिटीज फॉर द पुअर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. कि गरीब लोगों के लिए उनकी पहुंच में जो कॉमन चीज है, गवर्नमेंट बिलीव्स इन कॉमन सिविल एमिनिटीज, तो रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, मेडिकल, ये वो चीज़ें होती जो आसानी से गरीब की पहुंच में आ जाए या वहाँ की जनता की पहुंच में आ जाए. सो गवर्नमेंट एम इज वेलफेयर. सोशलिस्ट, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर अंडर द गवर्नमेंट पावर. अधिकतर रिसोर्सेज गवर्नमेंट पावर के पास होते हैं. गवर्नमेंट बताती है कि कौन से रिसोर्सेज को कहाँ यूज करना है. बेस्ट एग्जाम्पल इज चाइना. Previously, Russia was also socialist, but Russia is going to be a democratic way. Third, mixed economy. You can say balanced economy, 50-50. ऐसी इकोनॉमी जिसमें सरकार भी प्रोडक्शन करे, वही वस्तुओं का सेम कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट हाउस. नाउ द चॉइस ऑफ कंज्यूमर. अब यहाँ उपभोक्ता की पसंद है, उपभोक्ता की चॉइस है, कंज्यूमर्स चॉइस इज देयर कि वो सरकारी चीज यूज करता है, प्राइवेट यूज करता है. फ्यू इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया, सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का अपना वर्चस्व होता है, जैसे डिफेंस, बंदूकें बनाना, बम बनाना. ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, ये अभी भी गवर्नमेंट के पास है.
करेंसी, बैंक पॉलिसी, ये गवर्नमेंट के पास है। रेलवे, ऐसा कहते थे, अभी अभी सरकार ने, आपने देखा होगा पिछले 6-8 महीने के अंदर कुछ पार्ट रेलवे का उन्होंने प्राइवेटाइज करा। नहीं तो अभी रेलवे भी गवर्नमेंट के अंडर में थी। फ्यू स्कूल्स आर देयर, गवर्नमेंट स्कूल, दे आर कंप्लीटली अंडर द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज यूज करती है, यहाँ गवर्नमेंट का एम होता है पब्लिक वेलफेयर। लेकिन इसी के साथ साथ गवर्नमेंट हैज गिवन फ्रीडम, सरकार ने स्वतंत्रता दी है कि प्राइवेट इंडस्ट्री भी सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, प्राइवेट इंडस्ट्री भी सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। आपने देखा, आप प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल इज रन बाय, ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्री और प्राइवेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यू विल गो टू द गवर्नमेंट स्कूल। फीसेस, यू हैव सीन अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस, बिकॉज गवर्नमेंट का एम स्कूल चलाना वेलफेयर के लिए, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए स्कूल चलाना प्रॉफिट करना। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप BSNL ले सकते हैं, वो सरकारी है। आप प्राइवेट आइडिया, एयरटेल और किसी और कंपनी की ले सकते हैं, वहां पर जो सिस्टम होगा वो प्रॉफिट अर्न का होगा। नाउ 3 important questions which we have discussed: what to produce, how to produce, for whom to produce। अब हम देखेंगे इन तीनों इकोनॉमी में, ऑल 3 इकोनॉमी, ये आंसर्स कैसे दिए जाए। पहला, what to produce। In capitalist economy, generally the capitalist or the person who has a money will produce, वो वही वस्तु उत्पादन करेगा जिसका प्राइस वो खुद सेट कर सकता है, या वो प्राइस जिस पे वो बेचने को तैयार है। He is ready to sell and earns profit, and earns profit। Again I am telling you, what to produce, वो वस्तु उत्पादित करेगा जिसकी प्राइस उसके अनुसार डिटरमाइंड हो, निर्धारित हो, और जिससे उसको प्रॉफिट मिले। सेम क्वेश्चन इन सोशलिस्ट, आई टोल्ड यू गवर्नमेंट का व्हाट टू प्रोड्यूस, सोशल एम, सोशल वेलफेयर, सड़क बनाना, बिजली का प्रोडक्शन, स्कूल, एजुकेशन पॉलिसी, मेडिकल। यहाँ सरकार ज्यादा पैसे देकर कम पैसा कमा रही है, क्योंकि यहाँ पर एम ऑफ गवर्नमेंट इज सोशल वेलफेयर। यू हर्ड अबाउट, हैव यू सीन पोस्ट कार्ड, हम लिखते हैं पोस्ट कार्ड, वो 50 पैसे का, 1 रुपए का होता है, लेकिन अगर हम उसकी कॉस्ट देखें तो वो जब छपता है प्रिंटिंग प्रेस में, उसकी कॉस्ट, एक पोस्ट कार्ड की कॉस्ट लगभग 1 रुपए 10 पैसे, 1 रुपए 12 पैसे होती है, लेकिन सरकार उसके सिर्फ 50 पैसे देती है। रीजन, सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए कोई ऐसा सस्ता जरिया, यानी वे, मीडिया, कम्युनिकेशन कुड बी यूज्ड बाय द पुअर। आपने देखा होगा, अगर आपको कहीं चिट्ठी भेजना है, कहीं राखी भेजना है, तो आप कुरियर से भेज सकते हैं, इट्स प्राइवेट, लेकिन आप उससे कम रेट में स्पीड पोस्ट पोस्टेड टेलीग्राफ से भेजते हैं या साधारण डाक से भेजते हैं, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। रीजन, गवर्नमेंट एम इज social welfare, but privatization aim is, capitalist aim is earn profit। Mixed economy, I told you, balance। गरीबों के लिए सरकार प्रोड्यूस कर रही है, अमीर लोग अपने खुद खर्च कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, शुगर easily available in the market, that is 38 rupees, 39 or 40 rupees per kg, but poor cannot purchase। So for poor, government is going to distribute through PDS, public distribution system, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके थ्रू सरकार गरीबों को 10 रुपए, 12 रुपए या 14 रुपए में राशनिंग, अकॉर्डिंग टू राशनिंग, कि पर पर्सन 500 ग्राम, एक व्यक्ति को 500 ग्राम या 400 ग्राम मिलेगी एक महीने की शक्कर। तो 10 व्यक्ति हैं तो 4 किलो शक्कर, लेकिन रेट इज जस्ट 12 kg, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स दैट maintain balance for poor also and rich also। So first question, references। Second question, how to produce, which technology can be used by all 3 economies। Capitalists used the technology by
by which minimum cost would be there. स्वाभाविक है, आप एक प्रॉफिट बनिए की तरह सोचिए, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहेंगे, चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लेबर इंटेंसिव हो। टेक्नोलॉजी ऐसी होना चाहिए जिसमें आपको प्रॉफिट हो। यदि कैपिटल इजी अवेलेबल है, लेबर महंगा है, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल ज़्यादा यूज करेंगे, लेबर कम यूज करेंगे। यदि कैपिटल महंगा पड़ रहा है, लेबर ज़्यादा सस्ता है, तो आप कैपिटल की जगह लेबर यूज करेंगे। लेकिन आपका एम क्या होगा, द टेक्नोलॉजी विच gives you more profit. So how to produce? Capitalist always believes in minimum cost. कम से कम लागत, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बट सोशलिस्ट चॉइस ऑफ सोसाइटी, हाउ टू प्रोड्यूस? यहाँ गवर्नमेंट वो टेक्नोलॉजी यूज करती है जिसमें सोसाइटी का फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी की वजह से ना दे हैव कम अप थ्रू बिलो पॉवर्टी लाइन। तो सरकार दोनों तरीके यूज कर सकती है, डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, इधर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। जहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ कैपिटल यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट में यूज कैपिटल इंटेंसिव और गवर्नमेंट में यूज लेबर इंटेंसिव, बट एम इज वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। यू हर्ड अबाउट सैटेलाइट सेटल्ड बाय गवर्नमेंट और लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा देती है, करोड़ों अरबों रुपए के सैटेलाइट किसके लिए, कॉमन पर्सन के लिए, ताकि किसानों को वेदर फोरकास्ट बता सके कि आने वाले समय में बारिश होगी या नहीं होगी। कम्युनिकेशन आप देखते हैं, सस्ते से सस्ता कॉल है आपको होता है सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट इज वेरी कॉस्टली, लेकिन सरकार चाहती है कि सोशल वेलफेयर हो। सो गवर्नमेंट कैन यूज बोथ द टेक्नोलॉजी बिकॉज चॉइस ऑफ गवर्नमेंट इज ऑलवेज वेलफेयर बेस्ड ऑन सुटेबिलिटी इन मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, वेरी स्मार्ट, कि हम भी प्रोड्यूस करते हैं, आप भी प्रोड्यूस करो, हम गरीबों के लिए करते हैं, आप गरीबों के लिए करो, दैट इज बट डोंट गो ऑन स्टैंडर्ड। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन सुटेबिलिटी, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड में चेंज आएगा। बेसिक एग्जांपल इज, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम नॉट टेलिंग यू, बट ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं? शायद वहाँ पर उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है जितनी प्राइवेट में क्यों मिलती है? बिकॉज हियर बैलेंस सुटेबिलिटी, द प्राइवेट ऑनर takes more and more work from the teacher and best work from the teacher and represent the best into the market. वही बात सरकार करती है, क्योंकि सरकार का सोशल वेलफेयर है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, उसकी वजह से गवर्नमेंट का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। बट एम इज बैलेंस सुटेबिलिटी। जो गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट इंडस्ट्री को आप इसमें लेबर इंटेंसिव भी यूज कर सकते हो, आप कैपिटल भी, और गवर्नमेंट अपने चॉइस के अनुसार लेबर यूज करती है और इंटेंसिव कैपिटल। आपने देखा होगा मनरेगा चल रहा है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कि गांव में ही गांव के लोगों को रोजगार मिले। तो सड़क बनाना, कुएं खोदना, पाल बनाना, डैम बनाना, कंस्ट्रक्शन, इसमें सब में गवर्नमेंट सबसे पहले गांव के लोगों को लेती है। एटलीस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100 days एम्प्लॉयमेंट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ताकि गरीब लोगों को भी कुछ न कुछ मिलता रहे। लास्ट क्वेश्चन, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना? सिंपल क्वेश्चन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गिव्स द आंसर फॉर whom टू प्रोड्यूस, दोज हु कैन पे द प्राइस। स्वाभाविक है, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी, सॉरी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी जो लोग कैपेबल हैं, जो लोग प्राइस दे सकते हैं। इसीलिए आपने देखा फ्रांस, जापान, अमेरिका, जर्मनी, यहाँ पर लग्जरी आइटम बहुत मिलते हैं, कार, एसी, दे आर यूजिंग अ ब्यूटीफुल हाउसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, होम अप्लायंसेस। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है और वहाँ का जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो वही प्रोडक्ट बनाती है जो वहाँ के लोग खरीद सकते हैं। सो those who pay the price, capitalist produces, इसके लिए उत्पादन करेगी जो लोग पैसा दे सकते। बट वाइस वर्सा आंसर मैक्सिमम वेलफेयर, सरकार किसके लिए उत्पादन करेगी? पहले उन गरीबों के लिए,
class, elite, a group, those who cannot pay the money, जो लोग उतना पैसा नहीं दे सकते हैं, जो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं है, मुख्य धारा में नहीं है, उनको लाने के लिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में फॉर whom to produce, you can say government produce for welfare। सबसे पहले सरकार जन कल्याण के लिए गरीबों के लिए चीजें या कमोडिटीज या सिविक कम्युनिटीज या सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। आंसर मिक्स्ड इकोनॉमी, मेंटेन बैलेंस। वेरी गुड आंसर। सरकार प्रोड्यूस कर रही है गरीबों के लिए और प्राइवेट इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है अमीरों के लिए। सिंपल, सरकार प्रोड्यूस कर रही है गरीबों के लिए और प्राइवेट इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है अमीरों के लिए। गरीबों के लिए तो मैक्सिमम वेलफेयर का जो एम है आउटपुट मिल रहा है, और अमीरों के लिए तो जो लोग प्राइस ले सकते हैं। आपने देखा होगा इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ACs available in India, but who can purchase the AC? Those who have the money, जिनके पास पैसा है। सरकार कभी AC नहीं बनाती। आपने भी सुना होगा कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस AC because AC, TV that will come under luxury item. So government has given that particular sector or that particular part to the private industry. गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है सस्ती शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य, मेडिकल हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, communication, media, banking, that would be under the government. So common people must be utilized by the social welfare. Any doubt, any question? Okay, so write down the question. Write the three problems in all three economies. Write the three problems in all three economies. Thank you.